नमस्कार मु आपन प्रभात स्वागत करुच्ची आजिकार कार्यक्रम को आज्ञा हाँ मुझे आसी पहुँची जाइए भुवनेश्वर जयदेव भवन ठारे जोठी अनुष्ठित होची सक्षम 2025 और 26 कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम अनुष्ठित होची तेबे आसंतु ए कार्य संपर्क में आम देखा एवं जानिबा। Excited for the new green journey? Thank you. It's the EV rally. We all have been waiting to mark the wonderful green journey of our efficient India. We have with us guest of honor Padma Shri, Padma Vibhushan, Sudarshan Sahu. We have with us, can we have a round of applause? We have with us SLC and CGM and State Head IOCL, Mr. Kamal Sheel. And we have with us Mr. PSB Subharao, CGM GEL, Mr. Manik Mukherjee, State Retail Head BPCL, Mr. Gopal Krishnan Gupta, GM Operation and Distribution HPCL, Mr. PVR Satish. So we'll keep clapping. And we have got with us, we're very proudly announcing that Padma Vibhushan and Padma Shri Sudarshan Sahu Mohoday आज के हम गवर्नर पहुंचे सचिन along with him SLC and CGM and State Head IOCL Mr. Kamal Sheel, Mr. PSB Subharao, CGM GEL, Mr. Manik Mukherjee, State Retail Head BPCL, Mr. Gopal Krishnan Gupta, GM Operation and Distribution HPCL. Kindly welcome all of them. जोरदार तालियों के साथ kindly request you all to please come to the dais, come to the stage, sir. Please keep clapping for our. Can you please have a round of applause for our guest of honor and the dignitaries who have come here just to encourage you all and be a part of this wonderful, wonderful conservation of oil and gas and going green. So hello sir, namaskar and welcome. Thank you for joining us. I'm sure this is a wonderful moment for all of us for having you here. It's a great honor to have you all. I would definitely want you to speak something on this beautiful occasion to all the people present here. नमस्ते, जय जगन्नाथ। ये उड़ीसा में जगन्नाथ लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। आज गेल इंडिया का और ऑयल इंडिया का जो आज फ्लैग ओपनिंग होगा, ये जो सभा होगा आज इसके बारे में सब जो आए हुए बच्चे लोग हैं सब सुनेंगे। गेल इंडिया भारत सरकार ने क्या कर रहे हैं, अभी भारत का मोदी सरकार इसको 2036 तक भारत को बहुत आगे लेने का है। तो इसी में गेल इंडिया और ऑयल इंडिया का सब आगे करने के लिए वो लोग सब कर्मचारी और जीएम लोग जो काम करते हैं, जो माइनिंग में भी काम करते हैं, जो गैस निकालते हैं, सबको मेरा धन्यवाद। इसको आगे करिए भारत को। वंदे भारत माता, जय जगन्नाथ। Jai Jagannath. Flag off? Okay, with your permission. So we all know that we are here promoting a greener India, energy efficient India, and for that we have proudly managed to have this beautiful EV rally. So with the flag off,
we are going to mark the beginning of a journey, a greener journey towards efficient India. Are we ready for it? Can we have the flags, please? So may I now please request our guest of honor and the dignitaries to kindly flag off the EV rally and mark the beginning of the greener journey of our efficient India. Yeah, kindly sit in that. I think those who have got their cars here, EV cars, kindly sit inside so that the moment they flag off, you can just start your journey. And one, here we go! More clappings, everyone, more energy! Wonderful! Can we have the music? कमल शील, चीफ जनरल मैनेजर एंड स्टेट हेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर। और हमारे साथ हैं श्री मेनक मुखर्जी, स्टेट हेड बीपीसीएल, और श्री गोपाल कृष्ण गुप्ता जी फ्रॉम एचपीसीएल। सर, जो कार्यक्रम हुआ क्या बताएंगे आप? ये पखवाड़ा 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ऑयल संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम के रूप में मनाया जाता है, जो ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन फोर्टनाइट के रूप में पहले मनाया जाता था। और इस समय में हम लोग सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी कई ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे कि मास अवेयरनेस हो ऑयल और गैस को कंजर्व करने के लिए। आप सबको पता है कि एक बूंद तेल जो हम आज बचाएंगे वो एक बीज है, एक ग्रीनर टुमारो के लिए, कल के हरे भविष्य के लिए वो आज एक बीज है जो हम आज रोपेंगे। तो आज ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात का प्रसार करें, लोगों में अवेयरनेस लाएं कि ये जो हम आज के समय में एनर्जी को यूज़ करते हैं वो फॉसिल फ्यूल के रूप में है। जो फॉसिल एनर्जी जो है ये एक लिमिटेड एनर्जी है और इसको जितना हम संरक्षित करके चलाएंगे आगे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसका प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन एक बात इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि हमारा भारतवर्ष जनवरी 2026 के हिसाब से अब दुनिया का चौथा बड़ा इकोनॉमी हो गया है, जापान को सरपास करके। हमारी ग्रोथ कंटिन्यूसली 6 to 7% जीडीपी के रेट पे बढ़ रही है और यदि इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि 2050 तक हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आज जो रिक्वायरमेंट है उसके जस्ट डबल हो जाएगी। अगर इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो आवश्यकता इस बात की है कि जो आज हमारा डिपेंडेंस मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है उससे हम शिफ्ट हो करके और दूसरी अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, बायोफ्यूल, इन सारी एनर्जीज़ को भी हम आगे डेवलप करें, उनका इकोसिस्टम डेवलप हो ताकि हमारा डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल की ओर से कम हो, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है ये फॉसिल फ्यूल। और जिसकी वजह से हम सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और सभी का कंसर्न है। ओवरऑल टेम्परेचर राइज हो रहा है जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है और डिफरेंट प्रकार के जो भी हम इन्वायरमेंट में आज के समय में देख रहे हैं वो सारी अनफेवरेबल चीज़ें हो रही हैं जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाएं जिससे कि हम इस नए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर जा सकें। आज का हमारा थीम है, इस बार का जो कंजर्वेशन फोर्टनाइट का थीम है वो है कंजर्व ऑयल एंड गैस गो ग्रीन। और इस 15 दिन के समय में हम सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज
साइकिलथॉन, वॉकेथॉन, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेमिनार्स, ट्रांसपोर्ट मीट्स, सीएनजी रैली और ये सब आयोजित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें अवेयरनेस हो। और आज ही सुबह ईवी रैली का यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया और इसी आशा के साथ हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कंजर्व ऑयल एंड गैस, गो ग्रीन, ये मैसेज प्रचारित हो। धन्यवाद। Our guest of honor, Padma Vibhushan Sudarshan Sammohan. Can we have a round of applause, please? Thank you so much, sir, for your gracious presence. आदर सहित आज सम्मानित अतिथि हृदयपूर्ण स्वागत जनावा सहित keep clapping. Mr. PSV Shivarao, CGM GAL. Thank you so much, sir. Thank you. Shivarao, CGM GAL. Can we keep clapping, please? Thank you so much, sir, for your gracious presence. Thank you so much, sir, for your gracious presence. We thank from the bottom of our heart for your gracious presence. I'm sure. Respected delegates, members of the media, my dear students from school and colleges, a warm namaskar and a warm welcome to all of you. Welcome to Saksham 2026 Sanrakshan Khyamata Mahotsav. Today we are not just starting a campaign, we are going to start a movement. You might call it a mini movement, but a movement nonetheless, towards a cleaner and greener future. Our goal is very simple. It is to reduce, reuse and recycle to foster a sustainable, greener environment. With this note, I now welcome Sri Anjani Kumar, DGM Blue Retail Sales, Indian Oil Corporations, to give his inaugural welcome address. Good morning to all. Respected guest of honor Sri Sudarshan Sahu sir, Padma Shri and Padma Vibhushan. All industry colleagues on the dais, Sri Kamal Shri sir, CGM and SLC State Head of Odisha State Office. Sri PSV Subbarao sir, CGM, ONM and OIC GAIL. Sri Mainak Mukherjee, State Retail Head Retail PPCL. Sri Gopal Krishna Gupta, GM Operation and Distribution HPCL. Members from all industries, members of media, boys and girls from various schools and colleges. It is my privilege to welcome you all to the inauguration of Saksham 2026. We call it Saksham Khyamata Mahotsav. Our 15 days long mass awareness campaign aimed at fuel conservation and promoting a greener future. As we gather here under the auspices of Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Petroleum Conservation Research Association PCRA, we are reminded of our shared responsibilities to protect our environment and secure energy resources for future generations. This year's theme of Saksham 2026 is Conserve Oil and Gas, Go Green. It
emphasizes that saving fuel is not just an economic necessity but a moral obligation to reduce our carbon footprint. Throughout this fortnight, we will engage in various activities from live cyclothons to technical seminars and farmer workshop, LPG Panchayat, and many more events designed to bring behavioral changes in how we use fossil fuels. I welcome you all to place our support to this national movement to save fuels, to save our future. Thank you. Jai Hind. So much, sir, for throwing light on this importance of this beautiful program. Now, may I please request State Speaker of DPCL, Mr. Manik Mukherjee, sir, to give a his address. Please. Can we please welcome him with a round of applause, everyone? Respected Sri Sahuji, my oil industry colleagues, Kamal Ji, Subbarao Ji, Gupta Ji, my colleagues sitting in the audience, and especially the school children. So this is a occasion. ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି just for the students. ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛି meeting କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? କିଏ କହିପାରିବେ କି? Anyway, like the speaker before me said कि ये जो आज हम लोग सक्षम मना रहे हैं, इसका मतलब है संरक्षण क्षमता महोत्सव। संरक्षण का मतलब है कंजर्वेशन, सक्षम अपने आप को सक्षम बनाना क्या उसको सेल्फ सफिशिएंट। उसका क्या कारण है? तो माय एड्रेस इज स्पेशली फॉर द किड्स। बाकी हमारे ऑयल इंडस्ट्री मेंबर्स आर देयर, वी डू इट वेरी रिलीजियसली। जैसे पीसीआरए के एजेस में हम ऑयल इंडस्ट्री वाले ये सब करते हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि हमारा इंडिया में जो क्रूड प्रोडक्शन है करीबन 85% हम उसको इंपोर्ट करते हैं। ଆପଣ ବାପା ଯାଇକି ବାଇକରେ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଲେ ତ 100 ଟଙ୍କାର 15 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆନ कंपनीज को जाए और 85 टଙ୍କା जाए विदेशी कंपनी को। ठीक अछि, काई हम टोटली डिपेंडेंट फ्रॉम 85% क्रूड इंपोर्ट हम आसुची फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली इराक, सऊदी अरेबिया, मध्य मध्य रशिया। सो इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन fossil fuels, especially petroleum products. So because for that we spend a lot of money. अगर हम उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो एवरी मंथ करीबन 1,40,000 करोड़ 1,40,000 करोड़ हम उसमें फॉरेन कंट्रीज को देते हैं, बिकॉज ताकि हम उतना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर पाए। तो ये जो 1,40,000 करोड़ है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो हमारी कंट्री लाइक स्पीकर बिफोर मी सेड कि हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम दुनिया का बहुत बड़ा इकोनॉमी बन रहा है, अच्छा पावर बन रहा है, वी आर बिकमिंग अ बिग इकोनॉमी। बट देन ये जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसको हम कम कैसे करें? तो हम इस कर सकते हैं कि हम जो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम धीरे धीरे कम करें। तो कम कैसे करेंगे? उसके लिए हम पेट्रोल कम यूज करें। पेट्रोल कम यूज करेंगे ऐसा तो नहीं कि हम बाइक नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, बट हम चाहेंगे कि उसमें थोड़ा सा हमारा तेल का खपत कम हो। इसलिए हम लोग फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स यूज करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम जाते हैं हम पूछते हैं कितना माइलेज देती है बाइक, कितना कार कितना माइलेज देती है। तो जितना ज्यादा माइलेज देगा 1 लीटर पेट्रोल में उतना हमारा सेविंग होता है। उसी तरह से जैसे हम जंक्शन पे खड़े हुए हैं तो हम कहते हैं कि इंजन ऑफ कर दो। अगर 50 सेकंड के अंदर 40 सेकंड के ज्यादा अगर आपको ट्रैफिक लाइट में खड़ा रहना है तो आप इंजन ऑफ कर दो, क्योंकि खड़े रहने के जो 40 सेकंड का इंजन घुमा रहे हैं, बाइक हो या कार हो, जो इंजन चल रहा है उसमें ज्यादा आपका पेट्रोल खर्चा हो जाता है। रादर कि हम ऑफ करके 40 सेकंड बाद दोबारा चालू करें तो उसमें कम खर्चा होता है। तो हम कहते हैं कि 40 से 50 के बीच में पेट्रोल गाड़ी चलाओ। आप घर में यूज कर रहे हो तो जब प्रेशर कुकर यूज करो, आप स्टोव को सिम में चलाओ। ये सब करने से क्या होता है, धीरे धीरे हम अगर एक बूंद भी अगर हम सब कम करने लगेंगे तो वी आर 140 करोड़ पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया, तो बहुत बड़ा हमारा बचत आ जाएगा। अभी हम जैसे देखो
this government ने काफी बढ़ावा दिया है हमको. Now we are non-hydro fossil fuels और इंडिया में we are almost around 48% production में, because जैसे उसमें हाइड्रो पावर भी है, उसमें सोलर पावर भी है, विंड पावर भी है, बट उड़ीसा में we are slightly पीछे हैं हम. दो उड़ीसा इज पावर सरप्लस, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा थर्मल पावर है, थर्मल पावर मतलब जो कोयला से चलता है. उड़ीसा में बहुत इलेक्ट्रिसिटी बनता है, लेकिन हम ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बाहर में भेज देते हैं, हमको अपना खर्चा नहीं कर उतना खपत नहीं कर पाते. बट उड़ीसा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है फ्यूचर में, बिकॉज ऑल इंडिया में करीबन 23 लाख ईवी व्हीकल्स रजिस्टर्ड होता है. But then Odisha में that figure is somewhere around 2.3 lakhs. Almost 10% of the country's EV vehicles are in Odisha. Odisha government ने काफी हमारा इसमें काम किया है. जैसे we are now the 5th largest EV bus state. माने जो इलेक्ट्रिक बसेस होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक बस चलाने से क्या होगा? आपको कहीं से कहीं जाना है, स्कूल जाना है, या घर से स्कूल जाना है, घर से कॉलेज जाना है, तो हम बैटरी के द्वारा चले जा रहे हैं. बैटरी को आके हम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कर ले रहे हैं, तो हमका पेट्रोल डीजल का कोई खर्चा नहीं हो रहा है. तो वी आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस ग्रोथ. जो वो हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जो हमको पैसा बाहर में भेजना पड़ रहा था, तो वो हम उसको कम कर पा रहे हैं. तो लाइकवाइज एज द फ्यूचर ऑफ टुमारो, आप लोग जो स्कूल में हो, आई थिंक सम कॉलेज स्टूडेंट्स आल्सो, you are the future of the country, because if you are able to bring down the petroleum product consumption, पेट्रोल हो, डीजल हो, बाकी अदर फॉसिल फ्यूल्स हो, अगर हम उसको कम कर पाएंगे तो हम मोर एंड मोर हमारा जो फॉरेन करेंसी है उसको बचा पाएंगे. फॉरेन करेंसी बचाएंगे तो हम उस खर्चा को हम दूसरा किसी चीज में ला सकते हैं. जैसे गरीब कल्याण कोई योजना हो, या फाइनेंसिंग एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, हम वो पैसा को अलग जगह में खर्च कर सकते हैं. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यंग स्टूडेंट्स, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ये हमको अप्रिशिएट करना होगा. तो आप कभी भी कहीं भी देखते हो कि कोई अगर रैश की चला रहा है, या मतलब बड़ा ऐसा गाड़ी चला रहा है कि उसमें ज्यादा पेट्रोल खर्चा हो रहा है, आप उसको बिल्कुल अपना ज्ञान बांटिए कि भाई आप ऐसा मत करो, आप 40 से 50 किलोमीटर स्पीड में चलाओ, आप ट्रैफिक जंक्शन में खड़े हो तो उसको बंद कर दो. ये आपको छोटे छोटे चीज करना है, बड़ा बड़ा चीज नहीं करना है. बड़ा बड़ा चीज सरकार कर देगी. एज स्टूडेंट्स माय रिक्वेस्ट विल बी टू ऑल ऑफ यू इज दैट मी. थैंक यू सो मच. एंड आगे अभी 15 दिन का ये प्रोग्राम चलेगा, कुछ बहुत सारे कार्यक्रम होगा, कुछ कार्यक्रम अपने स्कूल्स में भी आके करेंगे, कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह होगी. वी विल ऑल शेयर इट इन द कमिंग आवर्स एंड कमिंग डेज. बहुत बहुत धन्यवाद. जय जगन्नाथ. Thank you so much, sir, for your campaign. It was absolutely thought-provoking, I must say. You have made us think twice before taking any action. So, the kind of small suggestions sir has told you to give to your friends and family members, kindly follow that. I hope we can all do what sir suggested us to do. जहाँ तक sir आपको कोई भी ऐसे छोटे-छोटे suggestion जो रिपोर्ट के कॉरिबेला and कॉरिबेला. Thank you so much. I'm sure it has the message has reached them, and these kids only can do the change, bring the change. So now time for SLC and CGM state head IUCL, Mr. Kamal C. sir, to come for his address. I request everyone to kindly welcome him with a round of applause. Respected श्री सुदर्शन साहू जी, पद्मश्री एवं पद्म विभूषण, डैश पर बैठे हुए हमारे ऑल ऑयल इंडस्ट्रीज के डिग्निटरीज, मेंबर्स ऑफ मीडिया एंड बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आप सबको पता होगा, एज ऑफ जनवरी 2026 इंडिया भारत की वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमी में एक आ गया है, और जापान को सरपास करके ये ऑफिशियली दुनिया की चौथा बड़ा इकोनॉमिक कंट्री हो गया है. और आगे आने वाले समय में यदि आप देखें तो 2047 तक हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 10 फोल्ड बढ़ के 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो जाएगी. जो पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ है, जो आप हम सब
देख रहे हैं expected to continue with the rate of 6 to 7%. कितना फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया, जो आज थर्ड मेजर कंट्री है वर्ल्ड का, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब इतनी बड़ी तेजी से जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट भी इस हिसाब से बढ़ता है। और आज जो हम वर्ल्ड के थर्ड पोजीशन पर हैं और हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन इज 7% of the overall world energy consumption, which is going to be 13% in next 20 years, say 2050, it is going to be 13% share. आज हम around 824 million tons of oil equivalent energy consume करते हैं, which is going to be around 1800 million metric tons by 2050. तो इतना ह्यूज रिक्वायरमेंट हमारा एनर्जी का कंजप्शन का होगा। और ये जो ग्रोथ है, बट दूसरी ओर जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि हमारा मेजर डिपेंडेंस ऑन एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है। और इंडिया के लिए और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब हो जाता है, क्योंकि हमारा 85% जो क्रूड है वो इंपोर्ट होकर के आता है। तो that increases the burden of import burden हमारे कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और फॉसिल फ्यूल्स आप सबको पता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना से ज्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं, क्लाइमेट चेंज उसकी मेजर डिवास्टेटिंग इफेक्ट आज के रूप में हम देख रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि फॉसिल फ्यूल के रिक्वायरमेंट के अलावा हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट की ओर मूव करें। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टुडे इज फर्स्ट सेव द ऑयल एंड गैस। जो आज हम फॉसिल फ्यूल का रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, जो डिमांड है, उसको हम जितना से ज्यादा सेव करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, आगे आने वाला आपका भविष्य प्लानिंग लीडर होगा। Each drop of oil we save today is the seed planted for the greener tomorrow. तो सबसे पहली चीज तो है कि हमको इसको ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करना है, बहुत समझदारी से इसको यूज करना है, क्योंकि इसकी रिसोर्सेज फाइनाइट है, लिमिटेड है। और दूसरी ओर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे हो रही है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, बायोफ्यूल, इन सब की ओर ज्यादा से ज्यादा सोचना है। इनके इकोसिस्टम को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है, ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सके जो हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन और ग्रीन कर सके। इसी मैसेज के साथ में इस साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन फोर्टनाइट, जिसको संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम के रूप में मनाया जाता है, उस बार का हमारा यही टैगलाइन है, सेव कंजर्व ऑयल एंड गैस एंड गो ग्रीन। So with this tagline, oil marketing companies going ahead and they have planned lot of activities such as cyclothon, walkathon, seminars in the industries, transport meetings, transport meets, as well as carrying out various debate competitions, painting competitions, essay competitions in the schools and colleges to spread the awareness about conserving oil and gas and going green. आज उसका यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा है। We are really delighted to have with us Shri Sudarshan Sahu ji to inaugurate this Shamta Sanrakshan
Pakpara in Odisha, in the state of Odisha, and under his, with his blessing, we will be ending this program in 15 days with good awareness, public awareness among the state of Odisha to conserve oil and gas and go green. Thank you very much. Minister, for your amazing speech. I'm sure everybody is quite aware what is going to happen in this 15 days, how you can be a part of this initiative by taking part in different competitions. And thank you so much for saying every bit which is really required for the kids to understand. Now, we have with us a guest of honor, Padma Shri Padma Vibhushan Sudarshan Samu, and he has been preserving and promoting cultural tradition in India and abroad, internationally, and trying to preserve everything for the future generation, where the tradition and culture of our country is concerned. So we are really honored to have you here, sir. Thank you for joining us. With the gracious present, I request you for the presentation. जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ देश ओडिशा जहाँ उत्कल उत्तर कहते आम बर्तमान ओडिशार आराध्य देवता जगन्नाथ को प्रणाम करी आज ये सभा आरंभ होती सभार उद्देश्य आपण मान समस्त आगु कहते शुणी आम केमी आमर जीवन को आमर परिवार को आमर आग पीढ़ी किसी रखिकी जो थरे कि आमे सब हमर भविष्य वंशधर मान को दे पारिबा। ये आज का जो मीटिंग है तो उसी में सक्षम सक्षम का नाम है और संरक्षण क्षमता महोत्सव है इसका नाम। ये 15 दिन चलेगा। 15 दिन में बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी होगा आप लोग को। आप लोग जानना चाहिए कि ये जो चारों कंपनी मिलकर ये बना रहे हैं इसका महत्व हम लोग भारतवर्ष को आगे लेने का है। 2047 में हम लोग कैसे भारत को आगे बढ़ा करके हम इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे भारतवर्ष इसको सोच के आप लोग को बहुत कुछ बताया गया है। तो आज ये सभा में आपका जो रहे कमल सिंह जी आईओसीएल का है, मानिक मुखर्जी बीपीसीएल का है, पीएसडी सुब्बाराव जी जेल का है, गोपाल कृष्ण गुप्ता जी ये भी आज मंचासीन है। ये लोग जो जो अभी आपको दोनों भाषण दिया और भी दोनों देंगे। मेरा आपको कहने का उद्देश्य है जो ये टायर कंपनी गैस कंपनी हम आयोजन किया है इसको प्रोग्राम को आगे लेने के लिए पीओपीएनजी तरफ से सर्वभारतीय स्तर में ये सब कंपनी तथा आईओसीएल बीपीसीएल बीपीसीएल एवं गेल इसको आगे ये काम को बढ़ा रहे। भारत का प्रधानमंत्री ने और जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब ने ये संचालन किया कि भारतवर्ष को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप सुना होगा भारतवर्ष 85% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। इसी में हमारा जो धन है वो बाहर चला जाता है। बाहर देश में जाने की वजह से हम लोग का बहुत नुकसान होता है। हम लोग तेल कंजप्शन कैसे कम करेंगे, गैस कंजप्शन कैसे कम करेंगे, इसके लिए पहले भी सब आपको सुनाया गया है। फरवरी 1 तारीख से 15 तारीख तक ये काम चलेगा। उसका सब स्टूडेंट लोग उसी में शामिल होंगे, वाकाथन भी होगा और डिबेट भी होगा और बहुत कुछ काम आपको आगे करने का है ये लोग के साथ मिल करके। ये महोत्सव का विभिन्न प्रकार प्रोग्राम तथा साइकिल रैली भी होगा, पदयात्रा भी होगा,
स्कूल कॉलेज में भी जा करके आयोजन किया जाएगा। तो इसके कई जो खेल है, पदार्थ है, उसको संरक्षण के लिए आपको बताया जाएगा। आप भी आपका छोटे छोटे भाई बहन को भी ये बताएंगे, जो शिक्षक रहेंगे वो भी सीखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। तो 85% जो बाहर से इम्पोर्ट आता है उसको धीरे धीरे हम जब कम करेंगे, हमारा देश में पैसा स्कूल में गरीब आदमी के लिए घर बनाएगा, उसके लिए रास्ता भी, रोड भी, कम्युनिकेशन होगा, जंगल भी बढ़ाएगा, बहुत कुछ काम इसके होगा। तो इसके द्वारा फॉरेन कंट्री से हमारा पैसा नहीं जाएगा। भारत को एक क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील करने के लिए आप लोग का योगदान होना चाहिए। आज जिन्होंने आपको ये सब काम के लिए बुलाया गया, उसको ध्यान से रखिए। आगे आप लोग कैसे कैसे परिवार में ये चीज को कम करेंगे, जैसे बताया गया, ज्यादा स्पीड में नहीं जाके 40 से 50 में जाइए तो तेल कंजप्शन कम होगा। जहाँ रास्ता में गाड़ी रुकेगा ट्रैफिक में, उसको भी उधर जगह आप थोड़ा ज्यादा समय होता तो उसको कम करना है, स्टार्ट बंद करके चलाना है। तो ये सब काम आज कर रहे हैं। ये 15 दिन का प्रोग्राम में आप जो जो सीखेंगे उसको गेट को, ईपीसीएल को, बीपीसीएल को, सबको आप लिख करके चिट्ठी कीजिए। ये जो काम हम लोग ये जो 15 दिन का हुआ, इसका महत्व के बारे में आप चिट्ठी लिखेंगे तो इसमें मालूम होगा आप लोग कुछ सीखा है। आगे भी बहुत कुछ काम होगा। और ऑयल इंडिया को और पेट्रोलियम को और गैस को सबको मैं 4 कंपनी को निवेदन करता हूँ, जो बिल्डिंग उनका बन गया तो बन गया, जो अभी बना नहीं है, भारत का ऐतिह्य संस्कृति जो स्थापत्य पुरी भुवनेश्वर में जो मंदिर है उनका बनाया हुआ कारीगर हमारा पूर्वज है। 1200 साल चला गया, बहुत सारे मंदिर की अभी खंडित अवस्था में है, उनको बनाने के लिए कारीगर भी कम हो गया, क्योंकि भारत सरकार को बोलना जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने पत्थर बंद कर दिया। तो 25-30 साल से पत्थर बंद करने में बहुत कारीगर बाहर चला गया। अपन कोई गोटे अनुरोध करी जे आपण जड़े जड़े कारीगर को आपण जो स्थापत्य कला तैयारी करछन ओडिसा रे, ताको आपण नुआ ऑफिस पुराना ऑफिस रे लगेले से माने वर्तमान बंची पारिबे और सेमानकर कार्य आगे को जाई परिबो। आपण को जो पर्दा लागुची ऑफिस मान के टेबल ऊपर पडुची ताको मत बुनकर मान करो ओडिसा हैंडलूम रो भी पका दी। ओडिसा रे जते ऑफिस तैयारी होची सेतरे किछि किछि मूर्ति कला भी रखबी। तेणु आपण मान को अनुरोध, आज आपण मान बहुत किछि मान को सुनिबा को बाकी अछि। मु एति कहि आपण को विदाय होची। धन्यवाद। वंदे उत्कल करनी, वंदे भारत माता। जय हिंद, जय जय। Thank you so much, sir, for your encouraging words. You spoke truly like an Indian, you spoke truly like a lover of our country, who really wants everybody should live, love and love. So make sure whatever suggestion he has given, you try to implement in your lives. So may I now please request Mr. Gopal Krishnan Gupta, GM Operation and Distribution at PCL, to give his address, followed by his pledge. सुबह सकला समस्त स्कूल चिल्ड्रन, नाइस पे सभी डिग्निटरीज। जैसा कि सभी लोगों ने बोला है, आपको भी सबको जैसे अभी बताया गया है कि ये फोर्टनाइटली जो ऑयल कंजर्वेशन एक मुहिम है, जो कि हमारे सभी ऑयल कंपनीज ने हर साल सभी हमारे जो देशवासी हैं उनको जागृत करने के लिए एक मुहिम चलाते हैं, जिससे कि अवेयरनेस बढ़े। और जैसे कि सभी ने बताया है कि भी जो फोसिल फ्यूल है वो हमारे लिमिटेड है। तो फोसिल फ्यूल जैसे कि आप पेट्रोल डीजल, फोसिल फ्यूल का मतलब होता है पेट्रोल डीजल या एलपीजी या सीएनजी, जो कि हम लोग डेली उसमें यूज करते हैं। तो ये सभी हमारे एक सीमित हैं, ये कभी ना कभी खत्म होने वाले हैं। और इसी वजह से जो हमारी सरकार है या हमारी ऑयल कंपनी है, ये प्रयास करते हैं कि ये इनका कंजम्पशन हम कैसे कम से कम करें। और दूसरे जो कि हमारे अभी जो ग्रीन एनर्जी हम लोग जो बोलते हैं, ये सोलर है, चाहे हमारा सीएनजी है या न्यूक्लियर पावर है या
विंड पावर, जो कि जैसे कि विंड और सोलर आपको मालूम है कि ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो इनका हम लोग कैसे अधिक से अधिक यूज करें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अभी सभी छात्रों को अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। हम लोग एक प्रतिज्ञा लेंगे, बिकॉज आप ही हमारे फ्यूचर है, और आपको भी एक प्रतिज्ञा लेके कि कैसे हम लोग को फोसिल फ्यूल को कम से कम यूज करना है। तो मैं सबसे पहले हिंदी में हम लोग प्रतिज्ञा लेंगे, हमारा जो संरक्षण क्षमता महोत्सव है उसके लिए मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप लोग बोलेंगे। हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे, ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके। आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के व्यर्थ उपयोग रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित करें, एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते। मैं अभी इंग्लिश में प्लेस लूंगा, आप सभी मेरे साथ में। We do hereby solemnly pledge that we shall be continuously striving to conserve petroleum products in all spheres of our activities, so that supplies of these scarce resources last longer for the progress of our country. We will shoulder the responsibility of a good citizen and endeavor to create awareness among the masses to avoid wasteful use of petroleum products, so as to build a new and healthy India for our future generation by ensuring a better environment. Thank you all. So much, sir. The program at the same time the pledge that definitely told us the responsibility and duties. Thank you so much. Now time to thank our guest of honor and our dignitaries for being present here and encourage all the kids and all of us to have a greener and cleaner India. It's time for the distribution of momentum, small token of appreciation, gratitude. May I please request SLC and CGM and State Head IOC and Mr. Kamalsi to present the memento to our guest of honor, Padma Shri Padma Vibhushan, Mr. Ratan Thakur. Thank you so much, sir. Now may I please request Mr. P.K. Pandit sir to come to the stage to felicitate and give away the token of appreciation and love to our dignitaries. SSC and CGM and State Head, IOC, Mr. Kamalsi. Mr. P.S.G. Sivarao, CGM Gail. Okay, time Rajma Bachcha. Mr. Manik Mukherjee, State Retail Head BPCL. Thank you, sir. For a wonderful speech that you started with. Mr. Gopal Krishna Gupta, GM Operation and Distribution at PCL. Thank you so much, sir. You not only give your address and place, but you make sure that everybody is absolutely healthy neurologically by making them keep their hands like that. So, can we have a round of applause for the guest of honor and the dignitaries? Thank you once again for joining us and blessing us
and sharing lot of things with us so that we become responsible and aware. Now may I please request Mr. P.S. Vishwarao, CGMDI, for the vote of thanks. Can we have a round of applause, everyone? Good morning, everyone. Before giving a vote of thanks, just to sum up what our esteemed guest and other dignitaries have spoken on this day. हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं ये सीखने के लिए और ये मैसेज आगे लेके जाने के लिए कि कंजम्पशन रिस्पांसिबल होना चाहिए। तो रिस्पांसिबल हम कैसा हो सकते हैं? हर एक मोड़ पे हमारा जिंदगी में हम रिस्पांसिबल हो सकते हैं। हमारा साहब लोग ने ऑलरेडी समझा दिया यहाँ पे कैसे कैसे बन सकते हैं। घर में खाना बनता है तो खाने के टाइम पे अननेसेसरी गैस को नहीं जलाना, घर में अननेसेसरी लाइट को जला के नहीं रखना, फैन को जला के नहीं रखना। रोड पे हम बाइक चला रहे हैं तो ट्रैफिक सिग्नल पे बाइक को रोक देना, या जो ग्रीन जोन जो रहता है बाइक में उसी जोन में चलाना। फैशन बहुत रहता है कि हम लोग बहुत तेजी से बाइक चलाए लेकिन अल्टीमेटली इट हीट्स अवे फ्यूल। सो सभी ने कुछ ना कुछ सुझाव दिए हैं। आने वाले 15 दिनों में हम ये मैसेज अक्रॉस कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेजिडेंशियल सोसाइटीज और बहुत और अलग अलग जगह में अलग माध्यमों से हम लेके जाएंगे। तो आप सबसे मेरा विनम्रपूर्वक रिक्वेस्ट यही है कि आप पार्टिसिपेट करें एक्टिवली। जो हम लोग मैसेज जो देना चाह रहे हैं उसको समझिए अच्छे से और आने वाला टाइम पे उसको ना पालन कीजिए। सो मूविंग अहेड विद vote of thanks, it is my privilege to present vote of thanks here. Our sincere gratitude and thanks to our chief guest and guest of honor, Padma Vibhushan Sudarshan Sahu ji, for his presence here and insightful speech. Sir, आपका यहाँ पे रहना और इस सेक्शन के बारे में सबको समझाना, it goes a long way. And we express our sincere gratitude to Big Brother IOCL, who is the custodian now for this section program after PCRA. And our sincere thanks to senior management of IOCL, GAIL, HPCL, BPCL, Oil India Limited and ONGC for taking forward this section campaign across country. Thank you, sir, Commercial sir, Mukherjee sir, Gupta sir, for your insightful speeches. Special thanks to organizing committee, इतना wonderful arrangement यहाँ पे बना रखने के लिए। Thanks to media representatives, हम कुछ भी करें आपके बिना ये प्रोग्राम जो है बॉस में नहीं जा पाएगा। तो आप लोग को हम उपस्थित करने का धन्यवाद। फाइनली सबसे बड़ा थैंक यू तो पार्टिसिपेंट्स को है, आपके बिना तो हम कुछ भी करें उसको कोई मतलब नहीं है। तो धन्यवाद, थैंक्स आप। Thank you so much. Now I request guest of honor along with the dignitaries to go ahead for the signature on the signature wall.
जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम तो 15 दिन चलो। जगन्नाथ को प्रणाम करके मुझे जनाऊँगी जे गैस और ऑयल इंडिया और बीपीसीएल ये समस्त ये प्रोग्राम को जो करिसेंती ये आमर देश पाई नुहे आम पाई आम परिवार पाई मध्य बहुत कार्यकारी हम। ये आमे जदि गैस कम व्यवहार करवा आमे जदि ऑयल कम व्यवहार करवा ताले आमर वैदेशिक विनिमय मुद्रा बंचिबो। आम देश रे सेही पैसा रे लोक गरीब लोक मानकर घर ही पारिबो। कोठी आपनकर सेमानकर पीवा को पानी नहीं पानी भी पाई लोक माने जंडिस रे देखुवे पेपर से पानी भल पानी पीवा को से करेंगे आउ अन्य रास्ता आउ अन्य सब जिनस हो पार। तेणु मु धन्यवाद जनाऊँगी आज जे ऑयल इंडिया और गैस कंपनी गेल आउ समस्त 4 जन जाक मिसिक 4टी कंपनी ये जो कार्यक्रम को आगे कर आम एक दूरदृष्टि संपन्न हम आमर परिवार रे आमर जो छुआ मैंने आज ये आसान समस्त की एक जनसाधारण को जनइबे ताहले आमे सक्षम हो पारिबा। सर इस जो कार्यक्रम हुआ है सोसाइटी के लिए क्या फायदा है? इसका मूल लक्ष्य क्या? ये जो एक 15 दिन का ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है, संरक्षण क्षमता महोत्सव इसको बोला जाता है। सक्षम हर साल मनाया जाता है और इस कार्यक्रम के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के तत्वावधान में सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस पीरियड में आम जनता में और ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाने का हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हमको ऑयल और गैस को कंजर्व करना है। देखिए हमारे देश में जो क्रूड ऑयल है 85% वो इम्पोर्ट होकर के आता है, जिसका कि बहुत बड़ा इम्पोर्ट बर्डन हमारे देश के ऊपर पड़ता है। तो जितना हम इसको कंजर्व करेंगे हम इतना अपने देश के विकास में मदद करेंगे। आगे आने वाले समय में हमारे देश के जिस तरह से 6 to 7% GDP के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट आगे आने वाले 20 सालों में जस्ट डबल होने वाली है। इतनी बड़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अभी हम मूलतः फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हमको दूसरी ग्रीनर एनर्जीज के अल्टरनेटिव्स की ओर जाना चाहिए, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, बायोफ्यूल्स, इनकी ओर अधिक से अधिक हमको मूव करना चाहिए। ऑयल कंपनीज इस ओर अपनी ओर से हमेशा प्रयास कर रही हैं। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में किया जा रहा है। इसी तरह से डीजल में भी बायोडीजल की ओर कई प्रयास किए जा रहे हैं। CBG और CNG को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है और उसमें अभी सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं। इसका उद्देश्य हमारा सबका यही है कि हम आम जनता में ज़्यादा से ज़्यादा ये जागरूकता पैदा करें कि ऑयल और गैस को हमको कंजर्व करना है, इसका उपयोग सही ढंग से करना है, इसका व्यर्थ उपयोग नहीं होने देना है और ग्रीनर एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा हमको अब आगे और प्रयोग में लाना है। थैंक यू। आजिकार अध्याय आपको केमी लगे निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में जनइबे। जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना तो निश्चित भाव सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को निश्चित भाव में दबाई दिंतु, जहाँफल एमती स्थान घटना और कार्यक्रम संपर्क में आपको खूब कम समय जनई पारि। तेज आज ये रोच प्रभास, नमस्कार।